मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आज मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला, मैं उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। टाइम मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं आपको पूरी बताऊं। मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करता हूं कि शहीदों के लहू से जला हुआ चिराग हम बुझने ना देंगे, ये प्यारे तिरंगे तुझे कभी झुकने ना देंगे। इतनी सी बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देके जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में सजाए रखना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली थी, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर ये आज़ादी हमको मिली थी। हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता था। ये अंग्रेज़ गोरे मन के काले मेहमान के रूप में भेड़िए निकले। यह जब भारत के अंदर आए तो इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई और भारत के अंदर 200 साल तक इन्होंने राज किया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इस देश के अंदर खनन बहुत अधिक हुआ करता था। तो जब सबसे पहले जो भारत के अंदर आया वो वास्को डिगामा था। इन लोगों की खोज सिर्फ एक देश से दूसरे देश के अंदर खनन की, बाकी चीज़ों की खोज के लिए ये एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी कंपनियां डाली, आर्थिक नीति का सहारा लेकर सोने की चिड़िया भारत को लूटा। यहाँ से कच्चा माल अपने देश में ले जाते थे और वहाँ महंगे दामों में बेचते थे, और वहाँ का सस्ता कच्चा माल यहाँ लाते थे और महंगे दामों में बेचते थे। धीरे धीरे इन्होंने जब समझा कि ये भारतीय अनपढ़ है, इनके बीच में हम आसानी से राज कर सकते हैं, तो इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऐसे करके इस देश पर 200 साल तक राज किया। इसीलिए हम 15 अगस्त 1947 को ये जो होती है हर रोज़ 15 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था। हर भारतीयों ने खुली हवा में आज़ादी की सांस ली थी। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब इनवाइट करना चाहूँगा नईम खान। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड शो योर परफॉर्मेंस। यस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Naeem Khan presenting you to a short speech on Independence Day. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India. When people remember the long phase of our nation, independence from British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence, on August 15, 1947, Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister at the national capital, New Delhi, also hosts our national flag. After that, the salute is given by firing 21 guns and a helicopter shows tricolor flower on the flag. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. Green signifies faith and chivalry. In the center of our flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly contributed spikes. We recall Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's independence. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hereafter, I would like to invite to Suleiman Khan. Please come on the stage. Suleiman Khan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Suleiman Khan presenting you 10 lines independence on independence. India gained independence on August 15, 1947. After independence on August 15, after independence in our nation, we accrued all our fundamental rights. We should all be proud to be an Indian, and we should admire our fortune to have been independent India. From 1857 to 1947, from the India, the loose money of freedom fighters, and serial decades of many independent India, several decades of many fighters and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Malik. Now I am going to represent you the translation of Surah Fatiha and Surah Al-Qari'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises due to Allah, the Almighty, the Lord of universe, the Master of creation, the most gracious, the most merciful, the Master of Day of Judgment. Day of Judgment, we worship alone you, and we ask for help from you only. And guide us on the right path, the path of those whom you have rewarded, not the path of those whom you have the angered your anger and astray or misguide. Now Surah Al-Qari'ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The striking calamity. What is a striking calamity, and what do you know about what is a striking calamity? The people like moth. The mountain will be like wool. Whom the scale will be heavy, they will be paradise. Whom the scale will be light, they will go in Jahannam. What about what is Jahannam? The Jahannam is whole fire. Jazakallahu al-azim. Here after I would like to invite to Nazrana Bano. Please come on the stage. Yes. Sumaya and Muska. Or Nazam. Or Nath. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हर एक
मोहब्बत है। मशाइख ने इसी पर खूब बहाया था, बहाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, the most gracious, the most merciful, the only honor of the day of recompense. You Lord, we yourself, you Lord, we ask your help. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed. You gaze not of those who endure angry, nor of those who went astray. Assalamu alaikum. Come on the stage. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहते हैं दिल वतन में, समझो वो हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है इसके हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से ये रस के जहाँ हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही
और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया का जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। तालियां बजती रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि वो पेड़ ही क्या जिसके फल नहीं, वो पेड़ ही क्या जिसके फल नहीं, वो तालियां बजती रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो पेड़ ही क्या जिसमें फल नहीं, वो टहनी क्या जिसमें फूल नहीं, वो प्रोग्राम क्या जिसमें खाली नहीं। इसलिए तालियां वगैरह रहती रहनी चाहिए। तो ये आफ्टर आई वुड लाइक टू इनवाइट टू नजराना मानो मुस्कान शाकिर। रियाज प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को, हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। हम जहाँ पे पाँव रख दे हम मटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये
हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मिला वादा के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिला वादा के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जमानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। BSI अकेडमी के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं अल्लाह वालों राम वालों अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद और बना लेना जो नफरत से टूटे हैं, वो घर तो बना लो, वो घर तो बना लो, एक ही तिरंगा रहने दो, रोज़ नए डंडे में नया झंडा मत डालो। इसके बाद I would like to invite to Afrin Banu. Please come on the stage. Yes. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। इसके पढ़ने में बड़ी बरकत है, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो उसकी बातों को मानता है वह मुसलमान है और जो उसको नहीं मानता वह काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान सब चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे बहुत खुश होगा और मरने के बाद बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने कामों का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, इसके बाद मैं अशरफ साहब को बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम। सभी प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम जो हो रहा है आज, ये हमारे आज़ादी का जश्न का प्रोग्राम है और मैं इस इदारे को जो आज तुम लोगों को मज़हब के बारे में, देश के बारे में और इंसानियत के बारे में सिखाते हैं, उन सभी गार्जियन टीचरों को, उस्तादों को सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इन तुम जैसे बिछड़े एक एक बच्चों को आज दीन के इस रास्ते पे इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं जैसे किसी कांटों के बीच में फूल को खिलाना होता है। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप इनके बताए हुए रास्ते पे चलें। अल्लाह आप सबको कामयाब बनाए और इस इदारे को भी कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम।
तो अब हम प्रोग्राम को समापन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं आपको सब लोगों को परिचय के साथ हम प्रोग्राम को समापन करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।